ट्रम्प ओपनली बोल रहा है मैं ताइवान में इंटरफेयर नहीं करूंगा. There's a huge difference between words and actions. If something happens to Iran, the US also controls Saudi Arabia, UAE. सोशल मीडिया पे भी दिख रहा है ना वो. आई डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू लास्ट टू लॉन्ग. इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है एक ट्वीट किया, ऑल इंडियन नेशनल्स इन ईरान लीव ईरान एज सून एज पॉसिबल. अब हिंदुओं को धर्म पूछ के मारो और द गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू रिटेलिएट क्योंकि उनका मेन प्लान ही है अटैक ऑन पुतिन्स हाउस. दैट वाज अ बिग डील. मिस्टर पुतिन वाज ऑन द टेलीफोन विद मिस्टर ट्रम्प. ट्रम्प उस कन्वर्सेशन को एक्सटेंड करे जा रहा था. ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी इंडिया और तालिबान की बातचीत होने लगी. व्हाट डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू? इंडिया एंड अफगानिस्तान आर नेचुरल पार्टनर्स. ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास जितने भी पीसेस हैं ना, दे आर ऑल सेट अगेंस्ट अस. टेक ट्रम्प, टेक बांग्लादेश, टेक नेपाल, टेक श्रीलंका, टेक चाइना. दुनिया में आग तो बहुत जगह लगी हुई. वर्ल्ड वॉर 3 इज अ पॉसिबिलिटी. अभिजीत जी, वेलकम टू द शो. Thank you so much. Good to have you again. It is always a pleasure to speak with you. Thank you, sir. But you know, the mood is downcast and I am honestly, genuinely a little bit worried. Because मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिया की फोरकास्ट अच्छी है. Okay. और मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो वी आर सराउंडेड एंड ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास जितने भी पीसेस हैं ना, दे आर ऑल सेट अगेंस्ट अस. टेक ट्रम्प, टेक बांग्लादेश, टेक नेपाल, टेक श्रीलंका, टेक चाइना. हमारे आसपास एक बड़ा दादा एक बन गया. यू नो, नाउ द वर्ल्ड इज नॉट मल्टीपोलर एनी मोर, इट इज बाइपोलर. इट अपीयर्स ऑल्सो दैट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना हैव कम टू सम सॉर्ट ऑफ अ अग्रीमेंट. अग्रीमेंट ये है कि आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर देख लो, हम ईस्टर्न देख लेंगे. ट्रम्प ओपनली बोल रहा है कि मैं ताइवान में इंटरफेयर नहीं करूंगा. इट इज शीज प्रॉब्लम, ही विल सी इट. व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग ऑन? There is a lot to unpack here. ट्रम्प ने कहा है कि ताइवान इज शीज इशू, राइट? There's a huge difference between words and actions. अभी यूएस क्या कर रहा है? यूएस इज ट्राइंग टू चोक ऑफ चाइनाज, पोटेंशियली चोक ऑफ चाइनाज एनर्जी सप्लाई. उन्होंने वेनेजुएला को ले लिया, राइट? नाउ दे आर essentially going to control what happens with Venezuelan oil, energy. 65 to 80% of Venezuela's oil goes to China. Now the US can choke that off. But that only represents 3% of China's oil supply. Then you have Iran, which accounts for about 15 to 20% of China's oil supply. If something happens to Iran, then the US controls that. The US also controls Saudi Arabia. It also essentially controls Saudi Arabia, UAE, Nigeria, and various other countries that supply oil to China. So where does China's oil come from if the US controls everything? Essentially only Russia. Right. So they are bringing China and Russia closer together if this happens, right? So, and when the US says that, Taiwan is China's problem, right? US is making everything China's problem, right? If they control all the oil supply, then it becomes really hard for China to fight a long war with the US. Yeah. And Taiwan is that sort of a thing that it's at China's doorstep. And China covets it. China is not able to take it because the US is too powerful in China's own backyard. Yes. तो बातें तो कर लेते हैं US कि हम we will leave Taiwan to China and China can deal with it. बातें are nice. But in the real world, can China actually take it? And will the US actually allow China to take it? If China launches a war on Taiwan, will the US turn Taiwan into China's Ukraine? China has to think hard about these things, long and hard. शायद शी जिनपिंग ने ऐसा कहा है कि 2027 का डेडलाइन है for taking Taiwan, whatever. Can China really do that? अभी China भी, China is on the back foot right now because of all these things. The US, whatever it is doing. China के जितने भी allies है, देखिए, Iran is under tremendous pressure. Venezuela चला गया. Syria has been taken out. Russia is under pressure. China के कितने allies है? China के allies है Russia, de facto allies है Russia, North Korea, and Iran. Iran is under tremendous pressure. So China is getting, isolated as such, from that perspective. तो ये है. अभी हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं. आपने कहा कि the forecast doesn't look great for India. Why is it so? You have to understand why. देखिए, if you look at Western Europe, for a minute, if you look at Western Europe, we can ask ourselves कि Western Europe में कौन से देश सबसे पावरफुल है? हम सोचें कि शायद फ्रांस होगा, शायद जर्मनी होगा, लेकिन सबसे पावरफुल देश वेस्टर्न यूरोप में कौन है? यूएस है. Even though it is not part of Western Europe geographically, इतना पावर प्रोजेक्शन है, इतना कंट्रोल है और वेस्टर्न यूरोप, इतना डोमिनेशन है वेस्टर्न यूरोप पे यूएस का. जो EU और नेटो नेशन है उन सब पे कंप्लीट डोमिनेशन है यूएस का. वेस्टर्न यूरोप कांट डू अ थिंग दैट गोज अगेंस्ट द यूएस इंटरेस्ट्स, राइट? तो अब कमिंग बैक टू द सबकॉन्टिनेंट, भारतीय सबकॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल देश कौन है? इज इट इंडिया? इट्स नॉट. इट्स द यूएस. ये हमें समझना है. ये हमें दिखता नहीं है, बट इट्स द केस. 2022 में पाकिस्तान में रेजिम चेंज हुआ, साइलेंट रेजिम चेंज. इमरान खान को डाल दिया जेल में और शहबाज शरीफ को ला दिया. और तब से पाकिस्तान इज अ यूएस वासाल.
पाकिस्तान इज एंटायरली अलाइन्ड विद द यूएस नाउ. थोड़ा बहुत चाइना से उनकी बातचीत होती है, बट मेनली इट्स द यूएस. ओके, अभी यूएस ईरान पे प्रेशर डाल रहा है. दे आर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट ओवर पाकिस्तानी टेरिटरी, Americans, and the Pakistanis are allowing it. Operation Sindoor में क्या हुआ? The US is openly supporting Pakistan. So 2022 में पाकिस्तान में regime change हुआ, किया यूएस ने किया. 2024 में शेख हसीना को उड़ा दिया, निकाल दिया. एंड बांग्लादेश में रिजिम चेंज किया. बांग्लादेश इज नाउ रिवर्टिंग टू इट्स ईस्ट पाकिस्तान स्टेटस. ये सिचुएशन है. तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों हो गए. 2025 में नेपाल हुआ, तो वहाँ पे भी पूरा डीप स्टेट वाला आपको दिख रहा है, सारे फिंगरप्रिंट्स है. राइट, मतलब पैटर्न तो इतना क्लियर है कि यू कांट शेक द फीलिंग कि बार बार एक ही कोई एजेंसी है जो बार बार ये कर रही है और प्लेबुक के हिसाब से कर रही है. बिल्कुल बिल्कुल. सो क्या हो रहा है कि भारत को एनसर्कल कर रहे हैं. हमारा पुराना जो थीसिस था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, क्राउन ऑफ थॉर्न्स, या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. हाँ, वही मैंने शायद बोला था आपको कि चाइना इज मेकिंग अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अराउंड इंडिया. द अमेरिकन्स आर फेंसिंग अ रिंग ऑफ थॉर्न्स अराउंड इंडिया. राइट, सो यू हैव ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, we have नेपाल, श्रीलंका पे भी इश्यूज है. तो इंडिया इज बीइंग सराउंडेड, और यूएस का अभी नया पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया. इट इज ऑफ कंटेनमेंट. इट्स टू कंटेन इंडिया. देखिए, इंडिया का फोरकास्ट ये है, इकोनॉमिक फोरकास्ट, कि नेक्स्ट 20 वर्ष में इंडिया को 0% चांस ऑफ रिसेशन है. Essentially 0% chance. India simply will not go into recession. India's economy will keep growing at 6, 7, 8% per year. अगर ये होता है, आज हमारा GDP लगभग $4.5 ट्रिलियन है. अगर इस तरह से ग्रो होता रहा इंडिया, तो इन 10, 15, 20 years इंडिया विल बी मिडिल इनकम नेशन, अ मेजर 10-15 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पोटेंशियली. एंड दैट मेक्स इंडिया द नेक्स्ट चाइना. डिस्पाइट इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके बावजूद इंडिया इतना पावरफुल हो जाएगा. यूएस नहीं चाहता ये हो. The US has already made one big mistake by aiding and abetting and midwifing the rise of China. अब ये नहीं चाहता कि भारत का भी यही ट्रेजेक्टरी रहे. और यूएस और चाइना दोनों एडवर्सरीज है हर चीज में. राइट, बट दे अग्री ओनली ऑन वन थिंग, इंडिया मस्ट नॉट राइज. तो ये सिचुएशन है. सो इंडिया इज बीइंग एनसर्कल्ड. अभी अगर ईरान में रिजिम चेंज होता है, दैट्स टेरेबल फॉर इंडिया. देखिए, ईरान में जो भी एस्पिरेशन है लोगों के, मे बी दे आर लेजिटिमेट. मे बी इरानियंस डोंट वांट टू बी अंडर इस्लामिक लॉ. मे बी इरानियंस वांट डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ऑल दैट. बट अगर ईरान में रिजिम चेंज हुआ, इट विल बी टेरेबल फॉर इंडिया, बिकॉज देन यू विल हैव अ प्रो पाकिस्तान ईरान आल्सो. तो ये सिचुएशन है. दैट्स व्हाई थिंग्स आर टफ फॉर इंडिया राइट नाउ. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन्ड ईरान एंड हाउ खोमेनीज रिजीम इज एक्चुअली गुड फॉर इंडिया. बट नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हम नहीं दिखाते कि कोई भी ऑटोक्रेटिक रिजीम या कोई भी इस टाइप का इस्लामिक रूल जो इतना ऑर्थोडॉक्स हो, वो हमारे फेवर में. बट उसकी स्टेबिलिटी हमारे फेवर में है. स्ट्रेटेजिकली चाबहार पोर्ट है और पाइपलाइन की बात चलती रहती है, और ऑयल सप्लाई बहुत ज़्यादा उसका. अब अगर वो डिस्टेबलाइज होता है, बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हो चुका है, और वहाँ पर प्रो यूएस गवर्नमेंट्स आती हैं, तो आपने कहा कि कंटेनमेंट इज yes a good state for them to achieve, but containment के अंदर अगर हम उसको अनपैक करें, बहुत कुछ होता है. कंटेनमेंट तो सिविल वॉर करके भी होती है जी. कंटेनमेंट न्यूक्लियर डेटोनेशन करके भी होती है. आई एम नॉट सेइंग वो होगा, आई एम सेइंग कि कंटेनमेंट के बहुत पैरामीटर्स हैं. बिल्कुल है. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक दिस कंटेनमेंट कैन गो? लेट्स अनपैक द कंटेनमेंट ऑफ इंडिया. व्हाट purpose does Pakistan serve? West Pakistan since the 1970s 80s onwards has been funded and financed by the Americans. Pakistani military and terroristic activities. जो भी पाकिस्तान ने terrorism against भारत किया, उसका source of funding US है. Okay, the Americans use Pakistan in that manner. बिल्कुल. So US keeps its hands clean. Pakistan does the dirty work, and the US benefits by destabilizing India. कश्मीर में जो हुआ, जो कश्मीरी हिंदूज का exodus हुआ, funded and financed by the US. 2008 में बॉम्बे अटैक्स हुए, well indirectly or directly whatever, it's what it is. तो Pakistan is that destabilizing factor for India. It is a permanent nuclear blackmail against India. India को कभी भी on demand पाकिस्तान in some shape or form destabilize कर सकता है. वो एक asset है US का. अभी ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओके, उसका क्या रोल है? तो बांग्लादेश का एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है इंडिया को, इलीगल इमिग्रेंट्स. लगभग 10 करोड़ हो गए भारत में आज, ऐसा माना जाता है बाय वेरियस पीपल. सो दैट इज अ ह्यूज डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर फॉर इंडिया. इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बोझ है. दे कैन बी मेड टू राइट ऑन डिमांड पोटेंशियली एंड डिस्टेबलाइज द कंट्री. और ऊपर से जब तक शेख हसीना थी तब तक बांग्लादेश वॉज अ वेरी स्टेबल नेशन. वहाँ पर कोई टेररिस्टिक एक्टिविटीज़ का कुछ अलाउड नहीं था. अभी क्या है कि जो भारत का फार ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे हिस्टोरिकली बिकॉज ऑफ हॉरिबल मिसमैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स, आउटफिट्स उभर के आए. हर स्टेट में मल्टीपल आउटफिट्स हुए हैं हिस्टोरिकली. तो इन सब को
फंडिंग, पनाह, ट्रेनिंग सब कुछ बांग्लादेश से मिलती थी, बहुत सारी. ओके, चाइना भी इन्वॉल्व था इसमें, बर्मा में भी कुछ था, व्हाटएवर, बट बांग्लादेश वाज डूइंग दैट अंटिल शेख हसीना. Right. नाउ बांग्लादेश में स्टार्ट दैट अगेन, ये पोटेंशियल है. Okay, so this could destabilize India's far eastern states, northeastern states, Nagaland, Manipur, Tripura, whatnot. तो ये एक और possibility है. And obviously the persecution of Hindus होता है वहाँ पे, और anti-India statements आते रहेंगे, and they will try to, all kinds of ऐसे tricks खेलेंगे. Now next, okay, ये दो हो गए, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान. अभी नेपाल है, नेपाल में regime change हुआ है. अभी बहुत सारा इन द पास ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट एंटर इंडिया वाया नेपाल. They'll fly to काठमांडू, और फिर अपना बॉर्डर तो ओपन है, और कुछ तो गलत डॉक्यूमेंट्स बना देंगे, and they'll just enter through the porous border because we trust Nepal and we should trust Nepal, हमारे ही लोग हैं. तो that is another thing. वहाँ पे देखिए 1990s में it is said, कौन से रॉ के चीफ थे, कोई तो थे, उन्होंने कहा था कि हमारी ही गवर्नमेंट ने माओइस्ट इंसर्जेंसी को सपोर्ट किया था, और उससे जो नेपाल का राजतंत्र है, जो मोनार्की है, उसको ओवरथ्रो किया गया. एंड सिंस देन नेपाल हैज बिकम प्रो चाइना, राइट. हमने ही उसको प्रो चाइना बना दिया, क्योंकि हु केम टू पावर, माओइस्ट, कम्युनिस्ट, दे आर ऑलवेज प्रो चाइना. तो हमने ही वो किया, हमारे ही उस टाइप की गवर्नमेंट ने किया, और तब से नेपाल हैज बीन काइंड ऑफ प्रो चाइना, लेवरेजिंग चाइना अगेंस्ट इंडिया. अभी अगर नेपाल प्रो यूएस हो जाता है, then once again it's going to be a problem for India, and उससे प्रॉब्लम होगा. फिर अगर हम वापस जाए तो टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, वहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है जो आजकल कम दिख रहा है, कुकी लैंड फॉर क्राइस्ट. ओके, एक आर्टिफिशियल राष्ट्र बनाना है वहां पे, डी फैक्टो नेशन विच इज बियॉन्ड इंडियाज कंट्रोल, कुकी लैंड फॉर क्राइस्ट. ये कुकी लोग कौन है? दे लिव इन बर्मा, दे आर नॉट इवन बर्मीज, दे डोंट रिस्पेक्ट बर्मीज कल्चर, ट्रेडिशंस, व्हाटएवर. दे फाइट अगेंस्ट बर्मा इटसेल्फ, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया आल्सो. ओके, वहाँ का जो इंडिया बर्मा बॉर्डर है बहुत पोरस है, बहुत ओपन है. वी हैव नॉट फेंस्ड इट बिकॉज बर्मा हिस्टोरिकली हैज बीन अ फ्रेंडली नेशन, इट स्टिल इज. तो लाखों कुकीज अपेरेंटली पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर में आ गए, एंड मोर देन हाफ ऑफ मणिपुर इज अंडर देयर ऑक्यूपेशन नाउ. एंड हम जानते हैं कि मणिपुर में क्या मेहम हुआ है सिंस 2023. सो दैट इज अनदर डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर दैट एसेंशियली थ्रेटन्स द इंटेग्रिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट. ये सब है. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है. वी कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन. इंडिया में भी अगर आप शाहीन बाग देख लीजिए, आई मीन दैट्स अ क्लासिक कलर रेवोल्यूशन प्ले बुक. दिल्ली रायट्स, all that stuff, right? It was a small scale experiment कि दिल्ली में जब ट्रम्प यहाँ पे आता है 2019 में शायद, तभी ये सब हुआ, राइट. और दिस वाज ब्लैकमेल अगेंस्ट इंडिया. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स यूएस यूज कर सकता है. द यूएस प्लेज द गेम ऑफ सब नेशनल डिप्लोमेसी, राइट. उनके डिप्लोमेट्स हमारे कुछ स्टेट्स में जाएंगे, और वहाँ पर अलग से दे विल डू डिप्लोमेसी, एंड दे विल कल्टिवेट allegedly some politicians and some political parties and create more divisions in India. जो ब्रिटिश ने डिविजन्स खड़े किए, उन सबको ज़्यादा एक्सप्लोइट करेंगे. तो overall the objective is to destabilize India, to weaken the foundations of what makes India a civilization and a culture. There's another factor, एक और factor है इसमें, industrial scale demographic re-engineering. Billions of dollars are being poured into India every year for large scale Christian conversions. पैसा दो कन्वर्ट करो, राइट. पंजाब में allegedly बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में हो रहा है. पहले सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में था, अब हर जगह हो रहा है. तो डेमोग्राफी को री इंजीनियर करेंगे. फिर बाहर की लीडरशिप आएगी उन लोगों पे, वाटिकन से लीडरशिप आएगी, जहाँ से भी आएगी. एंड दैट इज अनदर डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर फॉर इंडिया पोटेंशियली. तो बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं उनके पास प्लेबुक में. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू सी दिस डिस्टेबलाइजेशन गोइंग? टेक फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, जो वहां पर हुआ, अगर वो यूएस ने कराया है, तो जो नेपाल में हुआ अगर वो यूएस ने कराया हो, तो क्या वो इस टाइप का कुछ इंडिया में कराने की कोशिश करेंगे? कोशिश तो करना चाहेंगे वो. इंडिया इज वेरी डिफरेंट. इंडिया इज वेरी डिफिकल्ट. देखिए, कुछ नेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कू करना बहुत आसान होता है, regime change through military action, coup. In my years in public service, particularly in revenue administration, I observed one consistent issue from the side of business and taxpayers. When accounting systems rely on manual entry and disconnected records, accuracy suffers, control weakens. Now, accounting functions best when data is captured once, verified and traceable across the system. This is the approach behind what Odoo does. In Odoo Accounting, or Odoo's accounting app is designed to centralize financial records, customer invoices, supplier bills, expenses, bank transactions within a single system. Manual entry is obsolete, is old, and is significantly reduced through AI-based invoice recognition, which captures supplier invoice data automatically and allows simple validation.
Bank accounts can be synchronized directly with support for over 28,000 banks worldwide, enabling real-time tracking of transactions and easier reconciliation of your statements. Financial visibility is ensured through real-time dashboards and reports, while built-in tax localization and secure data storage will support regulatory compliance and record integrity. The structure is straightforward. The first application is free for life with unlimited hosting and support. For organizations that value accuracy, compliance, and financial control, Voodoo Accounting provides a stable and dependable system. To access this application, there is a link in the description. Pakistan, Bangladesh, yeah. even Nepal to that for that matter. हाँ. यस क्योंकि ये सब एसेंशियली एक सिंगल रिलीजन या सिंगल एथनिक नेशन होता है टिपिकली, Right. और वहाँ पे जनरली एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप टाइप का ऑलरेडी स्ट्रक्चर होता है, या फिर एक वीक डेमोक्रेसी होती है एंड द मिलिट्री इज मोर पावरफुल. तो कुछ कंडीशंस होते हैं विच मेक अ कू वेरी इजी. इंडिया में पॉसिबल करना ये करना बहुत डिफिकल्ट है. ओके, कू रेजिम चेंज, लेकिन जो वो कर सकते हैं दैट इज यूजिंग इंडियाज डेमोक्रेसी अगेंस्ट इंडिया इटसेल्फ. ओके, इलेक्टोरल प्रोसेस में आप इंटरफियर कीजिए, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे अफवाहें फैलाइए, बहुत सारा ऐसा नैरेटिव खड़ा कीजिए कि द गवर्नमेंट इज़ वीक, गवर्नमेंट इज़ नॉट यूजफुल, द गवर्नमेंट इज़ फेलिंग, गवर्नमेंट के सारी पॉलिसीज विफल जा रही है, ये वो, और पूरा ऐसा माहौल कीजिए कि गवर्नमेंट जानी चाहिए, राइट? और फिर आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को अलेजिडली फंड कर सकते हैं, एंड थ्रू दैट यू कैन जस्ट यूज इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस to overthrow the current government, and then have a government that is pro-US. So I think there is perhaps something even more pernicious that they might try. And if by they I'm not saying US, I am saying जो भी एजेंसीज इंटरेस्टेड है जी इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में, चाहे वो ISI हो, चाहे वो चाइना की एजेंसी हो, जो भी हो, जी, एक तरीका ये है कि और ये प्लेबुक अजीब सी दिख रही है मुझे. द बेस्ट वे टू डू इट इज किसी को आप वॉर में सक इन कर लो. ऑफ कोर्स, बढ़िया. और उसका सबसे बढ़िया तरीका है, अब मोदी जी एंड पार्टी हैव लेवरेज्ड एंड ऑल्सो प्रोपगेटेड द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री विद द हिंदू मेजोरिटी नैरेटिव. ओके, ठीक है, मतलब वो उनकी पार्टी का RSS का वो था, तो बीजेपी का भी है. सो देव डन इट, एज सच द कंट्री इज यूनाइटेड बिकॉज ऑफ दैट. टू अ लार्ज एक्सटेंट नेशनलिज्म बढ़ा है उसकी वजह से. वेरी इजी. अब हिंदुओं को धर्म पूछ के मारो और द गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू रिटेलिएट, क्योंकि उनका मेन प्लैंक ही ये है. इफ दे आर फोर्स्ड टू रिटेलिएट, दे गेट सक्ड इनटू अ वॉर potentially. It has already happened in Operation Sindoor, hypothetically. The same thing appears to be happening in Bangladesh, hypothetically. yeah, it is all provocation towards India, against India. Provocation. It's perfect. You put the government in a position where they don't have any choice but to react. And so you don't even need to change a regime. Just dry them out, suck them into a conflict. बिल्कुल. अगर इंडिया गेट्स sucked into a conflict, okay, बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया और बांग्लादेश का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इट इज लाइक अ one day conflict. Okay, वो तो I mean if India goes to war with Bangladesh doesn't stand a chance, वो तो हम जानते हैं. लेकिन ये सब प्रोवोकेशन है. बांग्लादेश में हिंदूज को रिपीटेडली टारगेट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली टारगेट कर रहे हैं. दैट इज टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया. और ये जानते हैं कि भारत की गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है ऑफिशियली, सो इंडिया कांट प्ले, कांट से दैट बिकॉज बांग्लादेशी हिंदूज आर बीइंग टारगेटेड, विल डू समथिंग अबाउट इट. सो दैट मेक्स द गवर्नमेंट इन द आइज ऑफ मेनी पीपल लुक वीक. Yes. कि हम हिंदूज को बचा नहीं पा रहे हैं. आप क्या कर रहे हो हिंदुओं के लिए? Worst case scenario, they look weak. Best case scenario, they get sucked into a fight. Exactly. Yeah. अब when we go to West Pakistan can anytime provoke India with a large scale terrorist attack. हम नहीं चाहते ऐसा कभी हो, but they have been historically doing that on and on. जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो किस लिए हुआ? Because of a large scale terrorist attack. Yeah. Who is saying it will not happen in the future? We will try our best. हमारी armed forces, हमारी security agencies, intelligence agencies, they will do their best to prevent this thing from happening. But you can't catch all the fish. You can't catch all the terrorists, right? तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो India may get dragged into another war with Pakistan. The US will seek to turn Pakistan into India's Ukraine in that case, right? And because Pakistan has that last thing. With two fronts. देखिए, दो फ्रंट हो गए. अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों हुए, बांग्लादेश यू कैन डील विथ इट इन वन डे. बांग्लादेश में कोई ऐसे मिलिट्री क्षमता नहीं है. Unless China chooses to intervene. Well, China also will get dragged into something. I'm not sure China will want to get dragged into a war with India with respect to Bangladesh. I think so. Bangladesh के साथ अगर military युद्ध हुआ तो I don't think China will get into it, and Bangladesh will be suicidal if they do that, But West Pakistan के साथ war can drag on because they have the nuclear blackmail. That is also an option, always an option that they have at the last resort, and that could be a problem. Ideally, भारत के लिए next
20 years में we ideally don't want to get involved in any military conflict. बिल्कुल. We just want to keep our heads down and build our economy and military strength at the same time. But yes, ये सारे तौर तरीके, ये सारे tactics, strategies हमारे ऊपर उपयोग करेंगे हमारे शत्रु जो है to drag India down, to ensure that India's economy doesn't grow, that India gets bogged down in its own neighborhood. यहीं पे फंस जाए हम और हम ऊपर देख नहीं सके, हम आगे बढ़ नहीं सके. तो और ये सब होने वाला है. So at least कोशिश होने वाली है. कुछ लोग बोलते हैं और ये आवाज़ सुनाई दी है कि नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, काट देंगे. चिकन नेक है, स्टार्टिंग से एक स्ट्रेटेजिक वीक पॉइंट रहा ही है वो. क्या आपको सच में लगता है ऐसा पॉसिबल है? देखिए, चाइना भी ये चाहता है, बांग्लादेश भी ये चाहता है, पाकिस्तान भी ये चाहता है, यूएस भी ये चाहता है. अभी ये कौन है, मोहम्मद यूनुस, उसने तो बुक्स निकाली है, प्रोमिनेंटली दिखाई है, उसने पब्लिसाइज की है, जिसमें मैप में पूरा बांग्लादेश का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ. चाइनीज जनरल्स ने 20-25 वर्ष पहले लिखा था कि इंडिया नीड्स टू बी फ्रैगमेंटेड, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया नीड्स टू बी कट ऑफ फ्रॉम इंडिया. यूएस भी अभी ये क्या कुकी लैंड फॉर क्राइस्ट जो कर रहे हैं, मणिपुर के जो हिंदू है उनके ऊपर इतना सारा अत्याचार हो रहा है, ये सब क्या है? इट इज ऑल फॉर द सेम पर्पस. दे वांट टू टेक फ्रैगमेंट द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया आउट. और 1971 में हमने वो चिकन नेक एक्सेप्ट क्यों की? वी कुड हैव रीइंटीग्रेटेड रंगपुर एंड ऑल दैट विद इंडिया, लेकिन हमने नहीं किया. सो दैट इज अ स्ट्रेटेजिक वीक पॉइंट, जियोग्राफिकल वीक पॉइंट फॉर इंडिया. तो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट को सब के सब टारगेट करना चाहेंगे. ऐसा अगर होता है कुछ, some big kind of thing, maybe we should rearrange the geography in such a way that it's more advantageous for India. And more advantageous for India. The other side of it is कि बहुत सारे चिकन नेक बांग्लादेश में भी हैं. हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है. And so if we wanted, तो we could actually take direct access to the sea. No question. चिट्टागोंग. Yes. चिट्टागोंग वाला कितना, आई थिंक कुछ ही किलोमीटर का, एक 20-30 किलोमीटर होगा शायद, 50 होगा शायद. No big deal. The Indian Army can take care of it in one day. But एक जगह है, I don't remember the name, इतना से छोटा सा पीस ऑफ लैंड है यूरोप में. It is what triggered World War II when Germany took over. अच्छा. It is what triggered World War II. छोटी सी जगह है जो where Hitler marched into it, and it is what forced Britain to declare war, and then उसके बाद तो स्पाइरल इफेक्ट जो हुआ वो हुआ. तो डू यू थिंक, दुनिया में आग तो बहुत जगह लगी हुई है, हमारे यहाँ भी कुछ कुछ लगी हुई है. World War III is a possibility, a serious global conflict. I don't see it happening soon, in the near future. World War III is going to be, if it happens, World War III का definition क्या है सबसे पहले? That the major powers get involved in a war. Right. Major powers कौन है? US, Russia, China, or India. The fifth is Israel, which is like very small. So US, Russia, China, India get involved into a big war. Essentially, the top three are the US, Russia, and China. Right. If a war happens between these three countries and they're involved, it will be so damaging for them. उन्होंने इतने वर्षों तक कितनी मेहनत की है. फॉर एग्जाम्पल चाइना ने पिछले 40-50 वर्ष से कितनी मेहनत की, कितना प्रोग्रेस किया है, सब नष्ट हो जाएगा. Why will China want to get involved in a war? Makes no sense from them strategically, right? Russia, पिछले 25 वर्ष से Vladimir Putin is working hard to bring Russia back on a decent status. He has worked so hard to do that. Why will he want that to get damaged, all that progress? US geographically बहुत secure है, right? Atlantic Ocean, Pacific Ocean, दोनों तरफ इतने बड़े ओशन से. So essentially nobody can touch the US unless you use ballistic missiles. अगर किसी ने ballistic missiles का उपयोग किया, that means nuclear exchange. And that is World War III. So I think everybody stands to lose a lot. और वो नहीं चाहेंगे कि हम युद्ध करें. They will try to achieve their objectives through other means. I think localized conflicts हो सकते हैं, like Ukraine. But it doesn't make sense for other nations like China to go to war over, and risk so much. तो मुझे लगता है कि all nations are rational actors. They're not crazy. इन्होंने इतना सब कुछ पाया है. They don't want to fritter it away. Somewhere I read it's basically game theory, right? It is game theory. Yeah. Game theory. And game theory is the favorite pastime of psychopaths. You move, I move, checkmate, you die. That is how it works. Now, in that context of chess and game theory, what is Russia doing? Because अगर वो इतना नहीं चाहते कि they should be bogged down in a war, then why are they bogged down in a war? Great question. Why is Russia bogged down in Ukraine, apparently? Why is this a slow war scenario? Why is it a frozen conflict? Why is it a war of attrition now? Why is that so? क्यों है ऐसा? रशिया के पास पूरी क्षमता है कि कल सुबह यूक्रेन को साफ कर दे, फ्लैटन करे. We know that. Yeah. उनके पास एयर पावर कितना है जिन्होंने हार्डली यूज़ किया है. उनके पास मिसाइल्स, हर प्रकार के मिसाइल्स है. एंड उनके पास इतना बड़ा मैन पावर है इन द मिलिट्री. और
शुरुआत जब हुई थी 2022 में इस युद्ध की, तो रशियन मिलिट्री कॉलम्स हैड रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ कीव एंड दे वेंट बैक. सो रशिया एट सम पॉइंट डिसाइडेड कि हम इसको लंबा खींचेंगे. क्यों लंबा खींच रहे हैं? देखिए, बात यह है, यूक्रेन अगर अपने क्षमता पर, अपने बल के ऊपर ये युद्ध लड़ता तो एक सप्ताह में वो हार जाता, बिकॉज दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. मे बी एक महीने में हार जाता. ओके, तो ये 3 साल से 4 साल जितना भी समय हुआ है, हाउ इज यूक्रेन फाइटिंग द वॉर? क्योंकि इट इज यूजिंग वेस्टर्न रिसोर्सेज. ये रिसोर्सेज यूएस से नहीं आ रहे, यूएस इज नॉट गिविंग एनीथिंग, यूरोप इज गिविंग इट. द यूरोपियन जो राष्ट्र है, जर्मनी एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है, दे आर गिविंग फंडिंग टू यूक्रेन, दे आर गिविंग एम्यूनिशन, म्यूनिशंस एंड हार्डवेयर, all that to Ukraine. इसलिए Ukraine is fighting. लेकिन what Ukraine is losing is its manpower, its demography, its men. Men are dying. I'm sure Russian men are also dying, but Russia has a much bigger population. So Ukraine is surviving and fighting because of Western support, constant support. It is depleting Europe. It is depleting European resources. जितना लंबा ये युद्ध जाता है, the more Europe gets depleted. What does Putin stand to gain from that? A weaker Europe. A weaker neighborhood, basically. Yeah, at the same time, रशिया की इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है, ग्रो हो रही है. Is that so? Of course it is so. Russia's economy is not in recession. It has actually grown. GDP growth is positive and decent GDP growth. और दूसरी बात यह है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, रशिया का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा और ज़्यादा रोबस्ट हो रहा है. इट इज गेटिंग मोर एंड मोर रोबस्ट. ओके, सो रशिया इज बिकमिंग मोर रेजिलियंट. रशिया का हिस्ट्री है ये. In the initial phases of a war, any war, historically आप देखिए, in the initial phases, Russia does poorly. Operation Barbarossa देख लीजिए, ये देख लीजिए, जो भी है. Then after some time they start resurging and then they get stronger and stronger and stronger. Wars are good for Russia for some reason. It's weird. और I think आप सही कह रहे हो. You are on to something because why is Trump's hating this so much? एक तो जगह वो कहता है कि हमको we don't care, European conflict में कुछ हो रहा है. He seems to hate the fact that this war is prolonging. It means it must be benefiting Russia in some way, even if Russians are dying. What exactly is going on? It is making Russia stronger. देखिए, war is also an economy. अगर एक देश में एक देश वॉर में इन्वॉल्व है, तो उस वॉर एफर्ट को सस्टेन करने के लिए दे हैव टू बिल्ड अप एन इकोनॉमी, दे हैव टू बिल्ड अप एन इंडस्ट्री. सो अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है बिकॉज ऑफ वॉर, उससे आपका जीडीपी बढ़ता है, उसके आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उससे पूरा पॉपुलेशन मोबिलाइज होता है एंड दे गेट अलाइन्ड विद द नेशनल इंटरेस्ट. सो दिस इज ऑल बेनिफिशियल फॉर रशिया. और रशिया का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उनके पास एसेंशियली आधा यूरेशिया उनके हाथ में है. इतना बड़ा टेरिटरी है, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. जो भी चाहिए आपको, ऑयल चाहिए, गैस चाहिए, कोल चाहिए, आयरन ओर चाहिए, आपको जो भी चाहिए सब कुछ रशिया के पास है. केमिकल्स बनाने हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने हैं, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग रशिया हैज. उनको एक चीज़ भी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती है. That is the huge advantage they have. So their economy is getting more robust because of the war. Manpower, I don't know कितने रशियंस मरे हैं. यूएस कहेगा, यूरोप कहेगा कि भाई 10 लाख मर गए, whatever. We don't know what the truth is. Most likely Ukrainians are dying out in more numbers than Russians. Perhaps, yes. Yeah. So Russia is getting stronger because of the war. And the West is getting weaker. And Europe is getting crushed because of the war. Trump seems to hate this. I'll tell you why. ट्रम्प ने 2024 कभी उसका, जब भी उसका प्रेसिडेंशियल कैंपेन हुआ था 2023 में, उसने प्रॉमिस किया था, डे 1 ऑफ माय प्रेसिडेंसी आई विल एंड द यूक्रेन वॉर. उसने प्रॉमिस किया था ईगो पे रख के. किधर भाई, व्हाट हैपेंड? उसने पुतिन के साथ अलास्का में समिट किया, कुछ आउटकम हुआ? जीरो आउटकम. ट्रम्प हैज फेल्ड. तो ये तो पूरा उसका पर्सनल इमेज खराब हो रहा है. उसने एक प्रॉमिस किया था, ही हैज नॉट बीन एबल टू कीप द प्रॉमिस. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एंड द यूक्रेन वॉर, आई विल एंड इट ऑन डे 1. मेरी पुतिन से बहुत जमती है एंड सो ऑन. हैजंट हैपेंड एंड दैट इज मेकिंग हिज साइड द वेस्ट. देखिए, पूरा यूरोप जो है वो सब उसी के एसेट्स है. ऑल दोज यूरोपियन नेशंस आर अमेरिकन एसेट्स. दे आर गेटिंग वीकेंड. द यूरोपियन इकोनॉमी इज गेटिंग वीकेंड. मेरे को एक डाउट कभी कभार होता है जब ये वाला मैं नैरेटिव सुनता हूँ. ऑफ कोर्स आपकी बात तो ठीक है, बट ये नैरेटिव दैट ही वांट्स टू स्टॉप द वॉर because people are dying, because he wants a Nobel Peace Prize is rubbish. No, nothing. है ना? तो कुछ और है. There is something else. It's a strategic thing, right? US के पास ये सब assets हैं. अब हमारे assets weak हो रहे हैं, और हमारा जो शत्रु है वो strong हो रहा है. और हमारे शत्रु के साथ दूसरा शत्रु है चाइना, वो भी उनका ज़्यादा क्लोजनेस हो रहा है. Right. और इसको रोकने के लिए एक नया टेक्निक जो वो डिप्लॉय करते हैं, which is weaponization of tariffs, which is what they have done. Yes, अब इंडिया पे टैरिफ लगा दो आप,
ताकि वो रशिया का ऑयल ना खरीद पाए. द purported argument is that we need to stop this death machine of Putin. India is funding Russia's war on Ukraine by purchasing Russian oil. Yes. US is buying Russian uranium. उसका क्या हुआ? ये नैरेटिव बना के रखा हुआ है और उसके बहाने नैरेटिव डाला. और अब देखो कितना स्मार्ट है. एक काम करके दो चीजें. यू आर किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन. यू आर वीकनिंग रशिया and their economic machine, and you are containing India at the same time. See, it's interesting. The Americans imposed every imaginable sanction on Russia's economy. फिर भी रशिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है. रशियन रूबल इज स्टेबल. सब कुछ उन्होंने ट्राई किया रशिया के ऊपर, सारे के सारे इकोनॉमिक सैंक्शन सब कुछ, इट हैजंट वर्कड एट ऑल. तो अब दे आर गोइंग अगेंस्ट, दे आर मूविंग अगेंस्ट रशियाज, द नेशंस दैट आर सपोर्टिंग रशिया बाय बाइंग रशियन ऑयल, राइट. तो इंडिया पे टैरिफ डाले, 50% टैरिफ डाले हैं. चाइना इज बाइंग मोर रशियन ऑयल देन इंडिया, लेकिन चाइना पे कम टैरिफ डाले बिकॉज चाइना हैज लेवरेज ओवर द यूएस. सो द यूएस नाउ वांट्स टू hit the nations that are dealing with Russia. रशिया का पूरी तरह से आइसोलेट करने का प्रयास कर रही है यूएस. सो अभी इनडायरेक्टली ये काम कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली टैरिफ्स आर डेफिनेटली बिग वेपन. When Putin came to India, he was here for some very specific purpose. कुछ तो लेने आया था वो, या कुछ बताने आया था, या कुछ लेने आया था, या तो इंडिया के सोल्जर्स लेने आया था, मुझे नहीं पता. कुछ तो हुआ है. Of course. Why do you think he really came? See, ये सब बातें इवेंचुअली मालूम पड़ेगी. इंडिया एंड रशिया डील इन अ डिफरेंट वे. इंडिया और रशिया में बहुत लंबा रिलेशनशिप है, बहुत सॉलिड ट्रस्ट है एक दूसरे के साथ. और जब यूएस का प्रेसिडेंट यहाँ पे आएगा इंडिया में, तो व्हेन ही गोज बैक ही वांट्स टू अनाउंस कि मैंने ये किया, ये हमने साइन किया, मुझे हमारे देश को ये मिला. बिल्कुल. जब यूके का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आएगा, देन ही आल्सो वांट्स द सेम थिंग, यू नो वी साइंड दीस मेनी डील्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. रशिया का प्रेसिडेंट यहाँ पे आएगा, कुछ नहीं अनाउंस होगा. सो ऑब्वियसली डिस्कशंस हैपेंड, मे बी सम अग्रीमेंट्स वर रीच्ड व्हाटएवर, और ये सब चुपचाप इंप्लीमेंट होंगे. इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट्स नहीं होगी. मे बी इन द कमिंग ईयर्स वी विल सी इसका इफेक्ट क्या था. बट ऑब्वियसली इट वाज अ गुड विजिट एंड समथिंग, मेनी कंस्ट्रक्टिव थिंग्स मे हैव कम आउट ऑफ इट. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जिसने मुझे थोड़ा सा कंसर्न दिया था. दैट वाज द अटैक ऑन पुटिन्स हाउस. जी, दैट वाज अ बिग डील. जब मैंने देखा उसको तो मुझे लगा ये कुछ गड़बड़ है. या तो ये इन्होंने खुद करा है, या ये किसी और ने करा है. इन बोथ केसेस दिस इज नॉट समथिंग दैट दे विल बी साइलेंट अबाउट. नो, दे विल डू समथिंग बिग. एंड देन आफ्टर दैट वो रिश्निक मिसाइल्स इनकी स्टार्ट हो गई, एंड दे स्टार्टेड टू थ्रेटन, और एटलीस्ट पोजिशनिंग और पोस्चरिंग ऐसे होने लगी कि कुछ बड़ा करेंगे. आपको क्या लगता है कुछ हो सकता है? ये काफ़ी डरावनी चीज़ हुई, राइट. वेस्टर्न मीडिया तो बोल रहा है कुछ नहीं हुआ. व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दैट? वो हमने देखा, अटैक उस पे हाँ, देखा उसके घर पे. या तो क्या हुआ था कि मिस्टर पुतिन वाज ऑन द टेलीफोन विद मिस्टर ट्रम्प. वो दोनों बात कर रहे थे. ओह रियली? हाँ, एट दैट टाइम. और ट्रम्प उस कन्वर्सेशन को एक्सटेंड किया जा रहा था. एट द सेम टाइम this happened, the attack happened. Essentially, Trump kept Mr. Putin on the phone so that the attack can happen. That's what the Russians are saying right now. That's what the Russians are saying. Did Mr. Trump know about this? कि इसी समय CIA या whoever is attacking is going to launch an attack? Did he know about this? Or was he used by the CIA? वो हम जानते नहीं है. लेकिन CIA को तो उसने पूरी शायद दे रखी है. He seems to be very happy with the CIA, and the CIA they are working like day and night together. देखिए, मिस्टर ट्रम्प डजंट गिव ऑर्डर्स टू द CIA. नहीं 100%. He does not give orders to the CIA. उसने डील, he likes deals ना, डील कर ली उसने CIA के साथ. मैंने कहा था 2023 में जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा था यूएस का, मैंने कहा था कि इफ ट्रम्प विंस द प्रेसिडेंसी इट मींस दैट ही हैज किस्ड द रिंग. आपने गॉडफादर देखी है? हां, किसिंग द रिंग. CIA. देयर यू गो. रिंग है. चलो भाई, चलो तुम हमारे बेटे अब से. US presidents have to align themselves with the US establishment. उसको deep state कहो, जो भी कहो. The real power doesn't lie in the White House. The real power resides somewhere else. Men, वो guys with the coat बोलते हैं ना? Black suits. Black suits. Whatever. When the suits come, everybody bows down. Yeah, even Putin has said about this. He's spoken about this. तो US में जो actual power है वो कहीं और reside करता है. देखिए, US बहुत ही interesting nation है. Two-party democracy. Two-party system. Okay? One-party system को क्या कहते हैं हम? Dictatorship. North Korea or China. The US is one step above a one-party dictatorship. Right. It's a two-party system. Yeah. दोनों parties की foreign policies exact same है. दोनों parties की military policies exactly same है. बस internal policies में differ करते हैं. Okay? And it doesn't matter who is the president of the US. What the deep state wants is what happens. So the US क्या है? It's an autocracy masquerading as a democracy. The US is an empire run by shadowy figures.
That's what the US is. Yes. Yeah, तो अभी जो ट्रम्प ने पुतिन से ट्रम्प ने CIA से he doesn't give orders to the CIA, he just goes along with what the establishment wants. And he's doing a very good job. He's doing a tremendous job of that. He's totally aligned with the mission. और ट्रम्प चाहता है कि भाई ओके ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट का जो मिशन है, I will spearhead it. Okay, and I want to be remembered as the biggest, baddest, greatest president of all time. ये ट्रम्प का एम्बिशन है, पर्सनल एम्बिशन. तो शायद वो अचीव कर लेगा. लग रहा है अभी इतने एक साल में कितना कुछ किया उसने. नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो उसने पूरा वेनेजुएला उड़ा दिया. वो तो लगता है पीस प्राइज ही खरीद लेगा. He might do that. And now his recent obsession with Greenland. Greenland. Yeah, Greenland. Why? What do you think is narrative? Open narrative तो ये है कि it's about rare earth minerals. If I don't do it, then either Russia or China will do it. But why really? Multiple reasons. अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे ग्रीनलैंड का, नॉट फ्रॉम द इक्वेटर से देखिए, लेकिन नॉर्थ पोल से देखेंगे. ऊपर से तो बिल्कुल ही पास है ना. हाँ, तो it's right in the middle of Russia, China, and that. It's essentially between Russia and North America. Yes. Right? रशिया से अगर किसी ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया, सबसे पहले कहाँ दिखेगा? ग्रीनलैंड से. Correct. Right? तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक चीज़ है. अगर यूएस, और दूसरी बात ये है कि यूएस ने मनरो डॉक्ट्रिन को रीऑपरेशनलाइज किया है. मनरो डॉक्ट्रिन एक फॉरेन पॉलिसी थी यूएस की, 1823 में उन्होंने लॉन्च की थी. उसका ये कहना था मनरो डॉक्ट्रिन का कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है, मतलब नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस रीजन में किसी भी बाहरी ताकत को हम इंटरफेयर करने नहीं देंगे. दैट वाज द मनरो डॉक्ट्रिन. सो दे हैव रीऑपरेशनलाइज्ड इट, द मनरो डॉक्ट्रिन 2.0. ओके, कि नो एक्सटर्नल nation will be allowed to have any influence or any geopolitical leverage in the Western Hemisphere. Okay, we will be the super cop. हम डिसाइड करेंगे क्या क्या होगा. और इसके ऊपर उन्होंने एक ट्रम्प corollary डाला है, which is that even regional actors will not be allowed to go against US interests. जैसे वेनेजुएला में हुआ. तो ग्रीनलैंड comes mainly in the Western Hemisphere. वहाँ पर किसी भी external ताकत को they will not allow to have any influence, any leverage. Best way to do it, take it. Grab it. And obviously वहाँ पे rare earths है, oil and gas है, mineral resources है, and so on. Yeah. और दूसरा एक और क्या reason हो सकता है? You know, maybe NATO has outlived its usefulness. NATO में क्या है? It's a bunch of nations. एक पूरा coalition of nations है जिसका owner United States है, सबसे powerful nation है. And you to deal with this entire coalition. Maybe it's better to deal with all the European nations one-on-one so that you get more leverage on them. ओके, तो अगर यूएस ने ग्रीनलैंड के ऊपर आक्रमण किया या फिर कब्जा कर लिया, यूएस इज टेकिंग अवे द सॉवरेन टेरिटरी ऑफ अ मेंबर ऑफ नेटो. अगर किसी भी मेंबर ऑफ नेटो पे अटैक होता है तो नेटो का आर्टिकल 5 ट्रिगर होता है. एन अटैक ऑन वन मेंबर इज एन अटैक ऑन ऑल एंड दे हैव टू ऑल फाइट बैक. बट व्हाट इफ अ नेटो मेंबर अटैक्स नेटो मेंबर, तब क्या होगा? दैट डिस्ट्रॉयज नेटो. NATO cannot operate anymore. NATO को dissolve करना पड़ेगा फिर. Maybe the US wants to dissolve NATO itself and take better and stronger control over each European nation one-on-one. Trump को coalitions और बड़े alliances पसंद नहीं है. He prefers to deal with each nation one-on-one. He wants to use strong arm tactics, arm twisting and all that on each nation, and he's good at that. So maybe that's what he wants. Maybe NATO its days are numbered, perhaps. Yes. I mean, I don't know, but perhaps it also appears to me that number one, 3 hypotheses which could be correct or incorrect. एक, आपने कहा मिसाइल वाला ना, तो that मिसाइल वाला is a real factor. एक तो एयर डिफेंस के लिए it is the best place to install US का एयर डिफेंस. जी. Before any missile comes, आप उसको वहीं पे उड़ा दो. दूसरा, it could have something to do with space warfare. तीसरा, it is also possible that some very important servers are located there. That is could be. Who knows? It's possible. Yeah. Usually सर्दी ठंडी जगहों पे होते हैं servers, or it is also possible that it is very important for some reasons that we just simply do not know. There could be some unknown factors behind this. Yeah. Now, taking that and coming to Latin America, Venezuela. They take over Venezuela. Of course, the idea is कि भी वहाँ पे dictator है, want to take their oil and blah blah. Everybody knows you wanted the oil. But to what extent was it you wanting the oil versus you wanting to take the oil and push China away? बिल्कुल. See, वेनेजुएला में उन्होंने क्या किया है? They went in, they did an attack on Caracas, they kidnapped the president and his wife, and they went out. उन्होंने और कुछ चेंज नहीं किया है. जो गवर्नमेंट वेनेजुएला की थी वो आज भी इंटैक्ट है विदाउट द प्रेसिडेंट. जो वाइस प्रेसिडेंट जो लेडी है, Delcy whatever her name is, she is now the acting president. नोबेल प्राइज शेयर करने वाली है उसके साथ,
टर्म के साथ शी इज सेइंग समथिंग लाइक दैट. नहीं, वो तो नोबेल प्राइज विनर है, मिस माचाडो व्हाटएवर. Machado. नहीं, शी इज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला. अच्छा. शी इज सम आउटसाइडर हु She is some- हैज नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. अच्छा, okay. जो वाइस प्रेसिडेंट है वेनेजुएला की, हु वाज अंडर मिस्टर मदुरो, नंबर 2 आफ्टर हिम, शी इज नाउ द एक्टिंग प्रेसिडेंट. तो जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट है उसमें यूएस ने कुछ भी इंटरफियर नहीं किया है. बट व्हाट दे हैव डन, उन्होंने ब्लॉकेड किया है, नेवल ब्लॉकेड ऑफ वेनेजुएला, Right. व्हिच मींस कि अगर वेनेजुएला किसी भी नेशन को एक्सपोर्ट करता ऑयल, द अमेरिकन्स कैन स्टॉप इट. तो यूएस कह रहा है कि नाउ वी विल कंट्रोल वेनेजुएला's ऑयल एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेनेजुएला हैज टू फॉल इन लाइन विद अस, अदरवाइज मोर नास्टी स्टफ विल हैपन. तो इससे क्या होगा कि वेनेजुएला जो भी ऑयल बेचता है, या तो उसको उनको यूएस को बेचना पड़ेगा, या फिर किसी थर्ड पार्टी को बेचना है तो थ्रू यूएस बेचना पड़ेगा. दैट्स द ओल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी मॉडल. उन्होंने जब भारत पे कब्जा किया था ब्रिटिश ने, तो जो कुछ भी हम सबसे पहले दे डी इंडस्ट्रियलाइज इंडिया, देन दे अलाउड सम इंडस्ट्रीज टू रीओपन, और जो भी हम प्रोडक्ट बेचते थे वी हैड टू सेल इट टू द यूके Yeah. और टू सम थर्ड पार्टी थ्रू द यूके. सो सारा प्रॉफिट, सारा कंट्रोल यूके के पास था. दैट्स हाउ दे डिस्ट्रॉयड इंडिया. अब यूएस यही मॉडल वेनेजुएला पे इम्पोज कर रहा है. सो वेनेजुएला का मेजॉरिटी ऑयल चाइना को जा रहा था, और चाइना और रशिया के साथ काफ़ी अच्छा उनका रिलेशनशिप था. सो दैट इज गोना बी ended. It is essentially over now. और so that is one reason why they have done this. और दूसरा फैक्टर ये है कि they are sending a message to all the nations in the Americas कि भाई if you go against US interests, this is what can happen to you. तो ये बात है वेनेजुएला में.